Hello friends, this video for CACS CMA Foundation Inter and Final Old and New Syllabus student. In this video I will tell you how to make a study schedule like topper, how to make revision schedule like topper, how to make short notes, and end of this video I will give you some memorized tips and I will give you some secret strategy of toppers and some guidance. So watch this video and please share this video and please don't skip this video. But first of all, I want to see you about our advanced test series. Registration is going on for CA. Last date of registration 4th of August, and for CS and CMA last date of registration 9th of August. Okay, if you want to join our test series, then follow the procedure. First open the Silent Professional Institute of CNCS app and go to the store section, and here you will get the all detail of test series. Okay, this is the test series detail. Click this and here you will get the all detail. So what you will receive under advanced test series, you will receive more than 30 plus chapter wise test paper and suggested answer, and 16 plus full syllabus test paper as per institute pattern, and 8 plus revision test paper, and 90% practical and case study based questions, and 500 plus important level questions, and 1000 plus MCQ run through test portal. So benefit of joining our test series: easy to track problem under chapter wise test series. Answer sheet will be evaluated by our top faculty. 2-year depth paper checking experience. Within 4 days we will return your checked answer sheet with best suggestion. We will call you after checking of every 2 test papers and guide you according your performance. You can call us between 8 p.m. to 11 p.m. for guidance. We will teach you how to write proper answer in exam. Test series run through with or without internet. Okay, here two options available. You can follow our schedule for test series or you can make your schedule. Okay, both options are available. For more detail, contact this number. Okay, second option, to join test series, open WhatsApp and go to the TSP profile. This is WhatsApp profile. Here you will receive this option. Click this op click here and click here, and here all detail available, and you can click this link. Okay, this is the procedure to join test series. If you want to download the notes, then go to the batch section, click in your batch and go to the study material section. We will upload all study material and all notes after 5th of August. Okay, so stay connected with us. You will receive on this app everything whatever you need. Here you can play the puzzle game for increase your IQ level. Okay, or if you want to join our free mentoring program, then click the I button and watch the detail of mentoring program video and join this batch. Okay, so let's start. First of all, a study timetable for both group student. This is for both group student. uh, Here you will get the total 7 time set. You can follow any one time set. Here we will divide the perfect time for theory subject and divide for practical subject. You will get here the perfect time for theory subject and practical subject. Same for the single level student and same for the बोथ ग्रुप स्टूडेंट, एंड दिस इज फॉर वर्किंग एंड आर्टिकलशिप स्टूडेंट. ये आपका टाइम टेबल सेट है कि कब आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए, कब आपको प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए. टोटल 7 सेट है. किसी भी सेट को आप किसी भी दिन फॉलो कर सकते हो, और ये सिंगल ग्रुप के लिए है और ये वर्किंग स्टूडेंट के लिए. सो नाउ वी स्टार्ट फॉर सीएस स्टूडेंट. प्लीज select your 4 month, please make your study schedule for 4 month. आपको 4 महीने के लिए अपना स्टडी शेड्यूल बनाना. इस 4 महीने में आपके रिवीजन भी होंगे, 3 बार रिवीजन होंगे और स्टडी भी होंगे. सेम
फॉर सीए स्टूडेंट आपको भी 3 मंथ का प्लान बनाना है और 3 मंथ में आपको स्टडी करना है और रिवीजन भी करना है। सीएमए का भी 4 मंथ का होगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। सो फॉर्मेट क्या होगा, दिस इज द फॉर्मेट। टोटल 5 कॉलम होंगे, टोटल 5 कॉलम होंगे, 1 फॉर डेट, सेकेंड फॉर वन सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर second subject. Okay, and this column for revision, this column for revision. Okay, so first revision before sleeping, first revision every day before sleeping, second revision after 3 days, and third revision every Sunday. This is your revision cycle. First revision every day before sleeping, second revision after 3 days, and third revision every Sunday. This is your revision cycle. You can follow this revision cycle, and this is the top secret of every topper. Okay, so you must follow this revision strategy. So this is your total 5 column. Here mention your date, chapters, and this is your revision day. ओके, तो टोटल 5 कॉलम आपको बनाने हैं, एक डेट का, एक सब्जेक्ट का, एक दूसरे सब्जेक्ट का। 2 ही सब्जेक्ट लेके चलने हैं। ओके, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट लेके नहीं चलने हैं, अदरवाइज जो भी आप स्टडी करोगे सब मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद आप भूल जाओगे। 2 कॉलम दोनों के रिवीजन के लिए होंगे। तो एक रिवीजन एवरी डे बिफोर स्लीपिंग हो रहा है, दूसरा रिवीजन 3 दिन के बाद चौथे दिन हो रहा है, एंड तीसरा रिवीजन एवरी संडे को हो रहा है। इस तरह से हम आपको टारगेट भी देंगे फ्री मेंटरिंग बैच में। हम खुद आपके लिए शेड्यूल भी बना देंगे। अगर आप हमारे शेड्यूल को फॉलो नहीं करना चाहते हो तो आप खुद का शेड्यूल इस वीडियो की हेल्प से बना के आप उसको हमें सेंड करो, हम उसको चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, और उसके बाद आपको उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप टारगेट को फॉलो कर सकते हो। एवरीडे अटेंडेंस लगेगा। मेंटरिंग प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आई बटन को क्लिक करके आप मेंटरिंग वाले वीडियो को देख ले। सो 5 कॉलम आपको बनाने हैं, मैंने बता दिया। 5 कॉलम में एवरीडे जो आप रिवीजन करोगे उसके लिए कुछ मेंशन नहीं करना है, बस वो आपको एवरीडे सोने से पहले उसका करना है। एंड एक आपका कॉलम यहाँ पे होगा 3 दिन के बाद चौथे दिन। ओके, आफ्टर 3 days स्टडी यू विल मेक 1 कॉलम फॉर सेकेंड डिवीजन। सो सेकेंड डिवीजन के साथ क्या करना है, टेस्ट देना है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन करोगे वो बिल्कुल आपके स्टडी शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो मैच करेगा, और 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट दे सकते हो या फिर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो 3 दिन के बाद आपको क्या करना है, एक दिन रिवीजन करना है चौथे दिन, और उस दिन टेस्ट भी लिखना है। नेक्स्ट, कि एवरी वीक इन संडे, यानी कि संडे को, थर्ड रिवीजन कब होगा, संडे को। ओके, संडे को एक रिवीजन आपको करना है, यानी कि तीसरा रिवीजन। इस तरह से मतलब एक तो आप डेली जो पढ़ रहे हो वो तो रात को कर ले रहे हो, एक 3 दिन में जो भी पढ़ रहे हो, मतलब दिन भर में आप जो पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत अगर भूल जाओगे तो रात को रिकॉल हो जाएगा। ये रिवीजन कर रहे हो तो वो याद हो जाएगा। अब 3 दिन में जो भी आप बोलोगे चौथे दिन आप रिवीजन कर रहे हो उस दिन याद हो जाएगा। और अगर फिर भी अगर आप कुछ भूल जाते हो तो छठे दिन के बाद 7वें दिन यानी कि संडे को आप रिवीजन करोगे, उस दिन याद हो जाएगा। एंड बैक टू बैक जब आप ये रिवीजन करोगे ना एक ही वीक में, तो कुछ भी आप नहीं भूलोगे, सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, हर चीज याद रहेगा, और आप एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हाई लेवल रहेगा। ओके, और उसके साथ जब आप टेस्ट लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके, सो ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको अपना टारगेट सेट करना है। यहाँ पे सभी के अलग अलग है, सीएस के, सीएमए के, इस पीडीएफ फाइल में। तो इस पीडीएफ फाइल को टीएसपी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन और टीएसपी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, और अगर आप मेंटरिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्टली ये व्हाट्सएप पे रिसीव भी हो जाएगा। इसके डाटा के बेसिस पे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे एक सीएस का, एक सीए का और एक सीएमए का 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी आपको खुद बनाना है इसके बेसिस पे। तो पहले सीएस वाले स्टूडेंट 4 मंथ का प्लान बनाएंगे। इस 4 मंथ के अंदर आपके रिवीजन भी आ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 4 मंथ का प्लान होगा। 4 मंथ में सबसे पहले अगर आपका एग्जीक्यूटिव है तो आप अपना थ्योरी वाले अलग करो, प्रैक्टिकल वाले अलग करो, और उसको डिवाइड करो टोटल डेज से, तो फिर आपके ये टारगेट निकल के आएंगे। बट रिमेंबर यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा अपडेट क्या करना है, कि जो छोटे छोटे चैप्टर से एक दिन में 2-3 टारगेट लेने हैं, और जो बड़े चैप्टर है वो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टारगेट लेना है।
सेम आपको थ्योरी प्रैक्टिकल में भी करना है। ओके, एंड सेम ग्रुप 2 वालों का और बोथ ग्रुप वालों का भी सेम करना है कि टोटल थ्योरी और टोटल प्रैक्टिकल को कैलकुलेट करना है। न्यू वालों का भी वही करना है, सेम इसी तरह से आपको अपना डाटा निकालना है। एंड जिनका सीएस प्रोफेशनल है, आपको टोटल चैप्टर्स को कैलकुलेट करके टोटल डेज से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो एक डाटा आएगा। उस डाटा के अकॉर्डिंग जैसे इसमें शो कर रहा है कि हाफ चैप्टर एवरीडे आपको करना है, यानी कि विद इन 2 days 1 चैप्टर। दिस इज योर मिनिमम टारगेट, नॉट मैक्सिमम, दिस इज योर मिनिमम टारगेट। आपको कम से कम इतना तो करना है, उसके बाद आप सेफ रहोगे। इससे ज्यादा आपको जितना करना है करते जाओ। ओके, नेक्स्ट सेम ग्रुप 2 वालों का है एंड सेम ग्रुप 3 वालों का है, बट रिमेंबर छोटे चैप्टर्स को टारगेट से ज्यादा करना है, शेड्यूल में ज्यादा मेंशन करना है, और बड़े चैप्टर्स को टारगेट के अकॉर्डिंग जो डाटा निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग करना है। सेम जो ओल्ड न्यू सिलेबस है उनके भी सेम है। यहाँ आपका ऑल ग्रुप का है डाटा। जो सीए इंटर वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये है। तो सीए इंटर सीए फाइनल वालों को 3 मंथ यानी कि 90 डेज का शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 5 कॉलम होंगे, एक डेट का, दो दो सब्जेक्ट का, और दो उन दो सब्जेक्ट के रिवीजन का होगा, और 3 डिवीजन होंगे, एक सोने से पहले, एक 3 दिन के बाद, और एक संडे को रिवीजन होगा आपका। ओके, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ लेक्चर्स देखने से स्टूडेंट पास हो जाता है ना, तो सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं। क्योंकि लेक्चर्स के साथ साथ हमें प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लिखना चाहिए, और हमें बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रिवीजन करना चाहिए, तभी रिजल्ट आते हैं। ओके, तो जो सीए इंटर वाले हैं उनके डाटा ये है कि आपको थ्योरी को अलग करना है, प्रैक्टिकल को अलग करना है सेम, और टोटल डेज से डिवाइड करोगे तो ये डाटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें छोटे बड़े सभी चैप्टर्स मिक्स है। तो छोटे को आपको एक दिन में 1 से 2, यानी कि टारगेट से ज्यादा अचीव करना है, और बड़े को एज पर द डाटा। ओके, सेम ग्रुप 2 एंड सेम बोथ ग्रुप। सीएमए वाले स्टूडेंट, आपको टोटल 4 मंथ लेने हैं, एंड आपको भी सेम डाटा अपना निकालना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग करना है, और इस तरह से डाटा निकाल के आपको भी अपने टारगेट को सेट करना है। जो बड़े चैप्टर से एज पर द डाटा, एंड जो छोटे चैप्टर से एक दिन में 2-3 कंप्लीट करने हैं। ओके, सो इस पीडीएफ फाइल के हेल्प से आप अपना प्लान बना पाओगे। इस वीडियो में मैंने समझा दिया है कि कैसे ये पीडीएफ आपकी हेल्प करेगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप डाउनलोड करके आज ही शेड्यूल बनाओ, और शेड्यूल बना के हमें व्हाट्सएप करो। हम आपके शेड्यूल को चेक करेंगे, देखेंगे कि उसमें कुछ मिस्टेक है कि नहीं है। और अगर आप एडवांस टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि हम आपका मेंटरिंग प्रोग्राम भी दे देंगे, हम आपको रिवीजन स्टडी शेड्यूल भी देंगे, रिवीजन शेड्यूल भी देंगे, और हम आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, एवरीथिंग। ओके, व्हाट एवर यू नीड। अगर आप मेंटरिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो आज ही लास्ट डेट है। आप मुझे व्हाट्सअप करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और सारी इंपॉर्टेंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो रिमेंबर मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स शॉर्ट नोट्स के। Always make short notes before sleeping and recall whatever you study today. रात को सोने से पहले शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि जब आप रात को सोने से पहले शॉर्ट नोट्स बनाने जाओगे तो आप अपने माइंड पे प्रेशर डालोगे कि क्या क्या मैंने पढ़ा, मॉर्निंग में क्या पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा। जब प्रेशर डालोगे ना तो आपका माइंड काफी शार्प होगा, काफी आप ग्रो करोगे, आईक्यू लेवल काफी ज्यादा आपका इंक्रीज करेगा। जो याद रखने की जो कैपेसिटी है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप डेली रात को प्रेशर डाल रहे हो। एक दिन 2 दिन प्रॉब्लम होगा, बट धीरे धीरे वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, फिर आप जो भी स्टडी करोगे याद रहेगा। सो सोने से पहले आपको अपने माइंड पे प्रेशर डालना है, याद करना है कितने टॉपिक पढ़ा, क्या क्या था, और उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। Second, make short notes in your language on the basis of the knowledge you have studied throughout the day. अपने नॉलेज के बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बनाने, ये नहीं कि बुक ओपन कर लिया उसको देख के बना लिया। एट द टाइम ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स राइट द लेसन एंड पेज नंबर इन योर कॉपी, यानी कि पेज नंबर और लेसन नंबर आपको लिखने हैं अपने कॉपी में। सेट टाइमर ड्यूरिंग स्टडी, टाइमर लगा के स्टडी करना है। जो हमारे टारगेट और मेंटरिंग बैच के स्टूडेंट है ना, वो टाइमर लगा के स्टडी करते हैं, और उनके जो बेनिफिट निकल के आते हैं ना, मतलब वो 6-7 घंटे से स्टार्ट करते हैं, अभी तो 12-15 घंटे स्टडी कर रहे हो। अगर आप मेंटरिंग बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करो। ओके, स्टॉप स्टडिंग एंड स्टार्ट टीचिंग। ओके, इफ यू हैव प्रॉब्लम रिमेम्बरिंग, देन इमेजिन दैट you had teach someone,
बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप भूल जाते हो जो भी आप स्टडी करते हो। तो एक तो स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया कि आपको 3 रिवीजन करने हैं, एवरी डे और आफ्टर 3 डेज एंड वीक में संडे को। दूसरा स्ट्रेटेजी है, मतलब रिवीजन का तो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना ही है, उसके साथ आप ऐसा कर सकते हो कि आप सोचो कि सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, मैं उसको टीच कर रहा हूँ। ओके, टीचर बन जाओ। Next, after watching a movie, you don't forget the story because that time visualization system remain active in our mind. So you can follow this concept and make the some character in your mind. जैसे मान लो कि अगर कोई एनिमेशन रन कर रहा है, आप उसको देखते हो ना तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, आप उसको याद रखते हो। मूवी देखते हो तो याद रहता है, भूलते नहीं। तो इस चीज को हम अपने स्टडी में भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आपका टॉपिक है, आप पढ़ रहे हो व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, तो आप ऐसे सोचो कि कोई क्लाइंट आ रहा है, आपसे पूछ रहा है सर व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, या फिर कोई भी कैरेक्टर बनाओ, कैसे भी उसको स्टोरी में कन्वर्ट करके आप उसको स्टडी करो, और काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा लगेगा वैसे स्टडी करने में आपको। ओके, वैसा नहीं कि टीचर ने अपना नोट्स ओपन कर लिया, पढ़ा रहा है, बोरिंग लेक्चर बोरिंग लेक्चर, वैसा नहीं, वैसा मत पढ़ो। ओके, जो लिखा हुआ है वैसे पढ़ो, लेकिन उसमें कैरेक्टर क्रिएट कर करके, खासकर मेन टॉपिक पे आप कैरेक्टर क्रिएट करके स्टडी करो। ओके, मैं आपको लास्ट गाइडेंस ये देना चाहूंगा कि किसी भी स्टूडेंट के लिए पास होने के लिए कुछ चीजें चाहिए। ओके, हमारे यहाँ जितने भी टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, और हमारे यहाँ दो दो रैंक होल्डर भी आ चुके हैं टेस्ट सीरीज से। ओके, डेफिनेटली कि हम और आप मिल के वर्क करते हैं तभी रिजल्ट आते हैं। आप करो, हम करें, हम आपके मिस्टेक को बताएंगे, हम आपको जो गाइडेंस देंगे उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कि आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ओके, आपके जितने अच्छे रिजल्ट आएंगे उतने अच्छे हमारे नाम होंगे, और इसीलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टूडेंट को टाइम टू टाइम कॉल करते हैं, गाइडेंस देते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले कि अगर आपको क्या-क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टडी करना है, स्टडी के साथ वीक में 3 बार रिवीजन करने हैं, और रिवीजन के साथ-साथ टेस्ट लिखने हैं। क्योंकि जब आप टेस्ट लिखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपके क्या मिस्टेक है, आप लिख पाओगे कि नहीं एग्जाम में, तो वो सारी चीज़ें आपको मालूम चलेंगी। तो ये ऐसे कंसेप्ट है। ओके, सेकंड, अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप टच में रहो जब तक एग्जाम नहीं निकल जाता है। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है ना, आपको सारे गाइडेंस फ्री में दी जाएगी जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उन वीडियो को देखे, बहुत कुछ नॉलेज उसमें मिलेगा। जो हमारे टी सीरीज के स्टूडेंट हैं उनके पेपर पे भी वीडियो बनाया गया है कि क्या वो मिस्टेक कर रहे, क्यों उनके कम मार्क्स आ रहे हैं। तो काफ़ी नॉलेज मिलेगा आपको, काफ़ी उसे सीख मिलेगी, तो उसको देखिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, शेड्यूल बनाने में ही प्रॉब्लम होती है, तो यू कैन कॉल अस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर हमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे हमें चैट बॉक्स में जाके आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।